we opened up a lot of issues in the medical world. And today you are also, you've made the Kerala Files, which has exposed issues of society, the ills of society. So as a filmmaker, you're taking great steps towards not commercial success only, but also creating social awareness. When you embark on your projects today, is there a conscious thought in you today to do something, not just money making, but also doing such projects which will create more awareness? Like they said, after the movie, they got calls from everywhere. As a filmmaker, do you feel that conscious thought in your head? I think what is very important is when Sudipto Dada came to me and narrated me this script, I felt it was my duty to make this film. More than anything else, I felt compelled. I felt that if we are not going to tackle these subjects, and we knew the challenges, we knew it's going to be difficult, we knew on that day when we started that we will be labeled a propaganda film, we will be told people with agenda. We knew every criticism that was going to come our way. But that should not deter us from doing something which is so humane and so right. And that's why when somebody asks certain question, he or me, we get a little bit emotional, because at this point of time we should really talk about what is happening, these girls, their lives. That should be our priority, that should be our concern. We get emotional because we feel why we are not able to look at their pain, why we are not able to look at what they are going through, why the country needs to be woken up. And after this film also, we still need to be woken up. It makes us really emotionally angry sometimes. But that's the reason why I made the film. And I'm very, very proud that we all these girls are brave girls. They all knew what they were getting into. We all knew we're going to be labeled a lot. And yet we all have done it with all our intensity, with all our integrity and with truth. And that's what matters at the end of the day for all of us. So today we are in a very happy state that at least the nation is talking about this subject, this topic. Forget about Kerala's story. It will come, it will go. This topic should not go. This topic should remain in the center of the nation's conversation. That is important. Hi. Sorry? Sir, we have said again and again. मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूँ. शोले में गब्बर सिंह विलन है ना, तो सिंह कम्युनिटी के अगेंस्ट तो नहीं है रमेश सिप्पी साहब. हर फिल्म कुछ बुरे लोगों की बात करती है, और जब कोई भी फिल्म कुछ बुरे लोगों की बात करती है तो हम हर वक्त तो उसे किसी रिलीजन से नहीं जोड़ देते. सिंघम 2 में तो एक प्रीस्ट है विलन, तो क्या हिंदू सारे संत समाज को विलन कहने की कोशिश की गई है? बिल्कुल नहीं. वो एक कैरेक्टर है. हमारी फिल्म में कुछ कैरेक्टर हैं जो टेररिस्ट हैं. तो क्यों हम ये, जब हमने सिंघम 2 के वक्त या शोले के वक्त ऐसे सवाल नहीं उठाए कि आप तो देखिए हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, तो आज क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? आज हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये फिल्म टेररिस्टों के अगेंस्ट है? तो लेट अस अपलॉड द फिल्म रादर देन ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू से कि समहाउ ये फिल्म किसी और एक इशारा कर रही है. क्योंकि हमने बनाते वक्त बहुत केयर रखी है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी, किसी के भी अगेंस्ट नहीं है. हम सिर्फ और सिर्फ उन परपेट्रेटर्स के अगेंस्ट हैं और उन्हीं को हमने दिखाया है. दैट इज़ वॉट दिस फिल्म इज़ अबाउट. दिस फिल्म इज़ अबाउट दीज गर्ल्स. दिस फिल्म इज़ अबाउट दोज 3 गर्ल्स हु लाइव्स वर डिस्ट्रॉयड. उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. ये उनके लिए है. बाकी सब हमारे अपने तरीके हैं ना अग्री करने के, एंड दैट्स मोस्ट वेलकम इन डेमोक्रेसी. एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डिसअग्री. बट सवाल क्या है कि हम कभी ये सवाल नहीं उठाते ना. किसी और फिल्म में आपने ये सवाल उठाया? हर फिल्म का विलन किसी ना किसी रिलीजन से तो बिलोंग करता ही है. ऐसा तो कोई विलन नहीं होगा ना जो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता. आपने कितनी बार ये सवाल उठाए हैं, लेकिन आज ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम लड़कियों की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन जो हम सबको जवाब देना चाहिए. Hi Vipul, Kiran Jain this side. Hi.
फिल्म की कहानी अच्छी लगी, सबको फिल्म अच्छी लगी। मेरा सवाल ये है कि ये फिल्म की कहानी ज़्यादातर ISIS और टेररिज्म पर है। आज जब आपने ये जो एक्टिविटी रखी है, इनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया है, आपने उन लोगों को सामने क्यों नहीं लाया, या ला नहीं सकते या ला नहीं पाए हैं जो एक्चुअली ISIS और टेररिज्म का शिकार हो चुकी है इसमें? उसमें ऐसा है कि हम उन तक पहुंच नहीं सकते। जिस लड़की की कहानी शालिनी, वो अफ़गानिस्तान की जेल में है, और नीमा का टेस्टिमोनी हमने फिल्म के एंड में रखा है। गीतांजलि के माँ बाप का टेस्टिमोनियल भी हमने रखा है। लेकिन वो लड़कियां जो कहीं चली गई हैं, उन तक पहुंचना हमारी रीच के बाहर है। उनके मैं एक पॉइंट ऐड करूं, हमारी उद्देश्य ये नहीं था कि कोई एक एग्जीबिशन करके लड़कियों को दिखाने की कोई इरादा नहीं था। यहाँ पे कुछ ह्यूमैनिटेरियन कहानी बोलने की कोशिश की। गीतांजलि की जो माँ बाप की जो आपने फिल्म की एंड में देखे हैं, वो माँ बाप भी आना चाहते थे हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग ऐसे दूरी में रहते हैं, उनको इधर आने में 3 दिन लग जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट शहर से भी वो लोग बहुत दूर रहते हैं। बात ये है, कितने लोग, हमने कहीं नहीं बोला कि 50,000 लड़की 70,000 लड़की आईसीस में चले गए। उसके लिए आज भी हम क्या बोलेंगे, अलग अलग दुनिया की जगह से पेपर भेज रहे हैं, प्रूफ। आज भी एक प्रूफ आया कि 42,000 लड़कियों को आईसीस ने इम्प्रेग्नेंट की है। आज आए हैं, मतलब पायनियर न्यूयॉर्क करके कोई मैगजीन से। सो बात ये नहीं है कि हमने कोई सेलिब्रेशन करना था, कोई शो एग्जीबिशन करना था। हमें 3 प्यारी बच्ची की कहानी बोलना था, और वो कहानी हमने बोले, और उस कहानी के थ्रू एक बहुत बड़ा इशू को हम टारगेट की। ये श्रुति अगर अभी बोलना शुरू करेगी ना, रात हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ आंसू बचेगा, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर श्रुति अपने कहानी बोले, अगर अतीरा अपने कहानी बोले, चित्रा अपने कहानी बोले, तो बात यह है, मुझे दुख इस बात की हुई, हमारी देश में आज भी अगर गरीब को रोटी देने की बात करें ना, तो कोई सवाल उठाएगा, इसका कोई जरूर कोई उद्देश्य है कि गरीब को रोटी दे रहा है। पॉलिटिक्स ने बहुत बुरे कर दिए हमारी मन को। इन तीनों बच्ची की जो हमारी फिल्म में थी, और यहाँ पे जो 26 लड़की बैठी है, इनकी दर्द किसी को नजर नहीं आते हैं, यानी कि हमारी पॉलिटिकल मंशा मन में आता है, which really pained us.